Good morning, everyone. Hello. Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Good morning. I'll start my session in about 5 minutes. Some students are yet to join. So, welcome back once again to my session on marketing management. Last week we had discussed about the concept of omni-channel marketing, that is talking about the streamlining experience across all the channels. Today we will understand about the other channel options which are available to the marketer for maximizing their sales revenue and reaching every customer in different segments. So the next category of marketing channel, it is called as the hybrid marketing channel, where there are two or more marketing channels which are being established by the company to reach one or more customer segments. For example, Eureka Forbes, they have their direct marketing channel through which they sell their water purification systems, that is called as AquaGuard, and they have this EuroClean, that is a vacuum cleaner which is being sold directly to the customers. Apart from that, Eureka Forbes company, they are also into the security solutions. So one can purchase the products of Eureka Forbes company directly through the sales agents, that is direct marketing channels, as well as the particular product is available online through the websites the customers can buy, as well as the customers can purchase the product, the company's product from the stores. So this is called as the hybrid marketing channel. They are being set up so that you can reach one or more customer segments. Some customers prefer online shopping, some customer prefer visiting the store. Some customer go for the visuals, some customers go for the details. So for every channel, for every segment, the hybrid channels are very good. In the form of multi-channel distribution, it is also called as a multi-channel distribution system. A variety of direct and indirect approaches are being used, which
for delivering the firm's goods to the customers. This multi-channel distribution system, in which a single firm sets up two or more marketing channel to reach one or more customer segment. I gave you the example. These include the textile industries, the metal fabrication industries, office supplies industries, and the other service industries like insurance. Insurance is available online also, directly also the customers can purchase, whereas through agents also the insurance is available. So these are the hybrid channels which are meant for dealing with different market segments. Is the point clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let us understand the marketing logistics decisions. Logistics means flow of goods, the physical flow of goods and services from the producer to the end consumers, or from the consumer, from the producers to the other customer for the purpose of resale. Now here in the marketing logistics decision, the company has to uh, answer the 5 R's: delivering the right quality of the product to the right customer at right time, at right place, of right quantity. So these are the 5 R's of logistics. And the firm is involved in taking four major marketing logistics decisions, which are being mentioned over here. The first one is how to handle the orders. Order handling is really very tough job, especially when if the order is coming from different markets, different sources, online also, offline also. So you need to handle your orders, and that is the major decision under the marketing logistics decision. Then where to locate the stock, that is very important. The stock is supposed to be located in the nearest warehouse so that the cost can be optimized. That decision has been taken by the marketing logistics people. Then how much stock is to be held, that is very important. Japan like countries which are very small in terms of the land area, in terms of the population, they have invented the system called as just in time, Kanban, uh, then Six Sigma. All these systems are being just introduced by the Japanese, and they are being implemented by rest of the world, so that the industries can reduce on the inventories and can use that same particular capital for some other purpose. If you unnecessarily block your investments in the capital in the form of assets, especially the current assets, which includes the stock, once it is being sold, then only you can convert it into cash. The operating cycle period will be longer if the stock held is of very high quantity and the market turnover is very less. So you need to understand how much stock you need to hold so that you can get that economic order quantity as well as the economies of scale at the time of selling. Now, how to ship the goods is also one very important marketing logistic decision taken by the marketing channel members. The channel partners decide on what should be the particular overall transportation for this particular goods. Some companies prefer ships, some companies prefer the air cargo, some companies prefer the road transports, some companies prefer the courier services, whatever it is. So marketing logistics decision in broad terms covers these four major decisions: handling the orders, locating the stock, how much stock to be held, and then how to ship the goods. Is the point clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so let us understand about what is order processing. Order processing क्या होता है? जब आपने ऑर्डर दिया, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने एक पर्टिकुलर Amazon का एग्जांपल ले लेते हैं. यू हैव जस्ट प्लेस्ड एन ऑर्डर. ऑर्डर देने के बाद कई बार ऐसा होता है, यू हैव टू ऑप्शंस, whether you go for the COD if the option is given by the supplier, that is called as cash on delivery, or immediate payment. अब इसमें इमीडिएट पेमेंट के अंडर में भी दो ऑप्शंस होते हैं. इमीडिएट पेमेंट में आप कुछ EMI ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और आप डायरेक्टली जितना भी अमाउंट है वो नेट बैंकिंग के थ्रू, UPI के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं. तो ये जो पेमेंट मैकेनिज्म है, जब आपने ऑर्डर दिया और जब आपने पेमेंट किया एक्चुअल, इसमें जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग. So order processing is basically the total time which is being taken from the placement of order to making of the payment. It is very important that this cycle is smaller to increase the customer satisfaction. अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपने पेमेंट नहीं किया तो कंपनी आपको गुड्स डिलीवर नहीं करती.
पेमेंट के लिए कुछ ना कुछ एश्योरिटी होनी चाहिए, वेदर कैश फॉर्म या क्रेडिट फॉर्म थ्रू ईएमआई ऑप्शंस। अगर आपका ये प्रोसेसिंग फास्ट हो गया ऑर्डर प्रोसेसिंग का, कि इधर पेमेंट किया और इधर आपको डिलीवरी हो गई, सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ेगा। टेक एन एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड्स। दे आर नॉट one of the best in terms of serving the fast food to the customers, but still they are number one in the competition. Even though the quality of the burgers, as per the survey, was not found to be as per the expectations of the customers, but still, McD is number one food chain, that is the fast food chain across the globe. Why? Because of the order processing system. Within 1 or 2 minutes, you will get your order. If you are going for the takeaway meal option, you have to just drive through to the one window where you place the order. The moment you reach the other window, you will find that your order is ready. That is called as order processing. So the order processing system has to be very, very efficient. Using the technology only, you can you can actually increase this particular order processing speed, and with this you can get the customer satisfaction. If the cycle is smaller, the customer satisfaction and the customer delight can be achieved. MACD is number one in terms of fast food business just because they are dealing with such kind of things wherein the customer is coming. Thank you. And the moment the customer is coming, they get the order from the customers, they collect the payment, and then afterwards, when they make the customer makes the payment, within 1 or 2 minutes they deliver the same particular order to the meal to the customer, whether the customer has come for the particular eating that particular burger in the store, or whether the customer has come for collecting as a takeaway option. If you go to any vada pav store, if you go to any other misal pav store, if you go to any other food chain, they would not be so fast as compared to MACD. Within 1 or 2 minutes, no one is in a position to deliver the food. That is next to impossible. That is the speed, that is the efficiency which they have maintained without making any particular defect, without making any wrong delivery. MACD is having that Six Sigma concept. Out of millions, only 1 or 2 customer complaints are there. Otherwise, there are no complaints. This is just because of the order processing speed. I hope my point has been clear to everyone. Any doubts? No, sir. No, sir. Okay. So आपको अगर आगे चल के अपना ऑर्डर प्रोसेसिंग, अगर आप कोई बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कस्टमर आज वेट नहीं करना चाहता। चाहे आप एक कार खरीदने जाएं या आप एक मैकडी में बर्गर खाने जाएं, राइट, या आप मार्केट में जाके कुछ स्नैक्स आइटम परचेस करने जाएं, या आप कोई ग्रोसरी परचेस करने जाएं, या आप अपने लिए कुछ शॉपिंग करने जाएं, हर जगह आप देखेंगे कि इवन पेमेंट के भी कई सारे काउंटर्स लगे होते हैं। आप एक चेक इन करते हैं जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए, जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं, द मोमेंट यू एंटर, आप देखते हैं कि आप ही का पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर जो है, एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर, उसके 2 या 3 काउंटर्स होते हैं। जितना बड़ा एयरपोर्ट होगा उतने ज्यादा काउंटर्स होंगे। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट में जाओगे तो आपको लाइन से इतनी दूरी में फैले हुए काउंटर्स दिखेंगे कि आप कहीं पर भी जाके अपना काम करवा सकते हो। इट इज वेरी ह्यूज। तो ये क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि अगर कस्टमर का वेट टाइम आपने बढ़ा दिया तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाता है। हर जगह पे कंपनी अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम पे काफी फोकस करती है। खासकर सर्विस इंडस्ट्रीज को इन सब चीजों में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अमेज़न ने क्या किया? They started with the Amazon Prime Services, which was adopted by Flipkart, which was then adopted by other companies also. With the Prime service, they had offered the customer with the fastest delivery. ये फास्ट डिलीवरी क्यों किया उन्होंने? क्योंकि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितने टाइम में प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हो। In some cases, the Amazon products are being delivered in the same day if you are having the Amazon Prime account. This is what the beauty of the order processing is. Using the technology, you can do that. Even there are certain examples from other countries, like for example, United States. As a pilot project, this company, the Amazon company, has started delivering the particular orders through the drone, as well as one pizza company has started delivering the pizza to the customers using the drones. So gone are those days wherein the road transports were used exclusively for the purpose of local distribution of the goods.
Today, the air system is also used. Air cargoes are being used, or such kind of drones and technologies are being used to deliver the products to the customer in less time and with more efficiency. There were times wherein the dabba walas were only known for just distributing the tiffins across Mumbai. But today, the dabba walas are involved in another business, that is in the courier delivery. You know that in Mumbai there is a huge web of the particular roads, the areas, and the traffic congestion problem is always there. So the dabba walas are being used by one particular boy who is only 14 years old and is having a 100 crore company, and his name is Ketan Mehta. And this Mehta is only 14 years old, and he has created a 100 crores company just by taking the help of the Dabba Walas. He's been able to deliver the couriers, the parcels to the customers in Mumbai in a single day, which is not even possible for any other company, whether it is DHL, whether it is First Flight Couriers, or any other company. So this is how the order processing can help the other organizations also. Okay, now moving ahead, warehousing क्या होता है? Warehousing means accumulating or storing your finished goods. जहां पर आप आपका रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरीज रखते हैं उसको बोला जाता है स्टोर्स. जहां पर स्पेयर पार्ट्स रखते हैं उसको बोला जाता है स्टोर्स. Whereas the warehouses are exclusively meant for the purpose of storing the finished goods. The function of storage can be carried out successfully with the help of the warehouses which are used for storing the goods. अभी जिस मार्केट में जिस प्रोडक्ट की डिमांड है उस मार्केट से नजदीक में जो भी वेयर हाउसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा पुणे. In Pune city, there are a lot of electronic companies. Now, if you take the example of Sony, Sony comes with the LED TV. अब इनका जो LED TV है 4K वाला, they know that the demand for the Sony TV, the LED TV exclusively will be high for the Pune city as well as for the Mumbai. It would be slightly less in Nashik, but it would be totally less in case of other areas like Vidarbha, Marathwada, Parbhani, where the demand is quite less because the price of the TV is very high. It is considered as one of the premium product in the category. So the companies warehouses which are located in Pirangut area, in Chakan area, in Ranjangaon area, in Hinjewadi area, they are exclusively having the large size LED TVs because customers in Pune, they prefer the large size TVs for their homes or for their offices. This is why the warehousing is very important. If you are having a warehouse near to the market, you will get the cost efficiency. So the companies just focus on the warehouses nearby the market so that they can get the cost efficiencies and they can just match with the particular demand of the market. So warehousing is basically an assumption of responsibility for the storage of goods by storing the goods throughout the year and releasing them as and when they are needed. Warehouses that are very important part of the marketing logistics decision creates the time utility. जब समय पे जो चीज की जरूरत होगी वो समय पे आपको तभी मिलेगी जब वेयरहाउसेस होंगे. पुणे के पास में, पुणे के जितने भी MIDC एरियाज हैं वहां पर बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं. नाउ अर्लियर द कोल्ड स्टोरेजेस वर यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग द मेडिसिन्स and for the purpose of storing your vegetables and the fruits. But today the cold storage systems are being used for other things also, like for example storing the chemicals which require the lowest temperature. Then there are certain other things which are being stored in the warehouses for keeping the long shelf life. The perishable items, especially the dairy products, the fishes, etc. So warehouses, if they are located nearby the market, they will give you the time utility and they will reduce the cost. Otherwise, the warehouses will not be able to reduce the cost if they are located far from the market. This concept you have already studied in your financial management, that what is the cost center. So warehouse are generally a kind of cost center to the organization. They add to the cost. So the companies will try to reduce the cost as much
as it becomes the optimum cost for the organization. Okay, is that point clear to everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Okay. sir. Now warehouses can have the classification of the materials, classification of the goods. Like some warehouses will have exclusively the expensive finished products or the goods. Some warehouses will have the mix of all. Some warehouses will have only the cheaper items. So it depends upon the markets. जैसी मार्केट होगी उसके हिसाब से आपको वेयरहाउसेस में सामान रखना है. कोका कोला का जो प्लांट है पिरंगुट में, पुणे में, इस कोका कोला प्लांट का जो वेयर हाउस है, द वेयर हाउस इज इन पिरंगुट ऑल्सो एज वेल एज द वेयर हाउस इज इन रांजनगांव एरिया. आप कभी भी रांजनगांव के वेयर हाउस में चले जाइए, आप देखेंगे कोका कोला के प्लांट के वेयर हाउस में, वहां पर आपको जो पेट बॉटल्स हैं 2.2 लीटर्स वाली जो पेट बॉटल्स हैं वो आपको स्टोरेज में ज्यादा दिखेंगी. क्यों? क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन उस एरिया में जो वाघोली है, चंदन नगर है, विमान नगर, कल्याणी नगर, बानेर, पाषाण, उस जगह से वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये इसलिए नहीं, वहां पे मार्केट पे डिमांड है, इसलिए उन लोगों ने वहां पे वेयर हाउसेस में ऐसे प्रोडक्ट्स को रखा है और इसीलिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है. नेक्स्ट, इन्वेंट्री. इन्वेंट्री क्या होता है? आप लोगों ने सभी ने ऑपरेशंस में पढ़ा है. ये इन्वेंट्री बेसिकली दिस इज अ स्टॉक that refers to the goods and the materials which a business holds for the ultimate purpose, either for resale or for the purpose of repair. Now inventory management क्या है? It is primarily concerned with managing the entire inventory which you are holding. That includes raw material, work in progress and finished goods inventories. As you know that huge amount of capital, the working capital, the huge amount of working capital is invested in working capital, and the working capital investments are majorly in the inventory. Organizations can reduce the cost only if they can do the proper inventory management. If 70 to 80% of the cost of the manufacturing organizations are invested in the inventory, that is the proportion of the working capital, then you can understand that any wrong decision will lead to the huge losses, because investment in inventory, the cash which you are blocking in the inventory, that is some kind of irreversible decision, and the entire amount cannot be returned unless and until you are in a position to process the inventory to the finished goods and the finished goods can be sold to the market. तो इसके लिए आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ती है. एंड एज यू ऑल नो दैट फॉर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट वी हैव लॉट ऑफ टेक्निक्स. इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स में हमारे पास में मैनेजमेंट पे एबीसी टेक्निक है, आपने पढ़ा होगा, ऑलवेज बेटर कंट्रोल. देन वीईडी एनालिसिस आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल. इन्वेंट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो. वाइटल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके बगैर में काम नहीं चल सकता, उसको वाइटल कैटेगरी में डाला. एसेंशियल उसकी जरूरत है बट अगर वो नहीं रहता तो थोड़ा सा प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब होगा, बाकी चलता रहेगा. और डिजायरेबल में क्या होता है, इसकी जरूरत है, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकेजिंग मटेरियल. प्रोडक्शन पे कोई खास असर नहीं पड़ता, बट देन जब तक आप पैकेजिंग मटेरियल नहीं लेके आओगे तब तक वो फिनिश गुड्स बनके बाहर मार्केट में नहीं जाएंगे. सो वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल. एक पंखा बनाने वाली कंपनी, सीलिंग फैन कंपनी, फॉर एग्जांपल गोदरेज और खेतान फैन, उनके लिए वाइटल में क्या आएगा, जो उसका कॉइल है, राइट, उसकी जो बेरिंग है, ठीक है. एसेंशियल में क्या आएगा, वायरिंग आएगी उसकी, और उसके जो प्लेट्स आएंगे, जो स्टील होगी, जो बॉडी की कवरिंग होगी, एसेंशियल है, उसके बगैर काम नहीं कर सकते. एंड डिजायरेबल में उसका जो पैकेजिंग है, थर्माकोल है, प्लास्टिक है, ऑल दीज थिंग्स. सो वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल हो गया. ऑलवेज बेटर कंट्रोल में आपने देखा होगा, ए कैटेगरी आइटम्स दे कंस्टिट्यूट्स ऑफ 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी दे आर कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 10% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री. Then you have B category item, then you have C category item which are very less expensive, जिनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है बट वैल्यू वाइज दे कंस्टिट्यूट ओनली 10 to 15%. ये सब आप लोगों ने पढ़ा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. आई होप यू हैव ऑल रेड दीज कंसेप्ट्स.
ओके, सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है? जैसा मैंने बताया कि कैपिटल आपका जो इन्वेस्ट है, उस कैपिटल का एक मेजर प्रोपोर्शन होता है वर्किंग कैपिटल। ये फिक्स कैपिटल से निकल के आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल डे टू डे वर्किंग के लिए जो आप यूज करते हैं, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो लगते हैं, वो वर्किंग कैपिटल से आप उसको फुलफिल करते हैं। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो कंपनी की लिक्विडिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। लिक्विडिटी पोजीशन अगर अफेक्टेड होगी तो क्या होगा? कंपनी ना तो टाइम पे सैलरी पे कर पाएगी, ना कंपनी वेजेस दे पाएगी, ना कंपनी कुछ रिपेयर मेंटेनेंस वर्क कर पाएगी, ना कंपनी के पास पैसा होगा कि वो रॉ मटेरियल खरीद पाए, ना कंपनी के पास पैसा होगा कि वो रेगुलर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कुछ भी है, लाइक एम्प्लॉय वेलफेयर, उसके बाद कैंटीन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, उसके बाद कुछ अगर रेगुलर मेंटेनेंस वर्क है, ये सब कुछ नहीं कर पाएगी। तो अननेसेसरी इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी पैसा ब्लॉक ना हो, उसके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट यूज किया जाता है, राइट? सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको सब कुछ देखना है कि कहां पर इन्वेंट्री को स्टोर करना है, वेयर हाउसेस कहां पर रखने हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसा यूज करना है, खुद का होना चाहिए कि थर्ड पार्टी लेके रखना है। ये सारी चीजें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आती हैं। नाउ मूविंग अहेड, this particular chapter is now over. Is there any particular doubt? I will straight away go to the chapter number 4 now. In case if you don't have any doubt, I will straight away go to chapter number 4. Any students having any questions No, in sir. this particular chapter? Okay. I want my other friends also to just give me the feedback. Sanket, Suraj, Pranav, Simran, Chaitali, Snehal, Saurabh, Prakash. No, sir. No, sir. No, Okay. no, sir. No, sir. Okay. So I officially declare this particular chapter is over. Now I move to the next chapter. Give me a moment. आज कुछ जगह पे आज से श्रावण स्टार्ट हो रहे हैं। जितने नॉर्थ के लोग हैं जो फॉलो करते हैं, आज से उनके श्रावण स्टार्ट हो रहे हैं। आप में से कौन लोग हैं जो आज से श्रावण का आज से चालू कर रहे हैं? कोई है आपके बीच में क्लास में? महाराष्ट्र में अभी शुरू नहीं हुए ना सर। महाराष्ट्र में नहीं, इसीलिए मैंने बोला ना नॉर्थ साइड में। एक्चुअली क्या होता है, सर। जितने ज्योतिर्लिंग है शिव जी के, वहां पे गुरु पूर्णिमा के बाद से लग जाता है श्रावण। 12 के 12 ज्योतिर्लिंग में वहां पर ये स्टार्ट कर दिया जाता है। ओके, सो वी आर नाउ मूविंग अहेड टू चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्रमोशन। प्रमोशन, एज यू ऑल नो दैट, आपके पास में प्रोडक्ट है, प्राइस भी बहुत सही है, लोकेशन भी बहुत सही है, बट अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ उसका, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट क्या है। इसीलिए मार्केटिंग में बोला जाता है जो दिखता है वही बिकता है। और ये कंसेप्ट हम लोगों के ऊपर भी फॉलो होता है, बिकॉज व्हेन यू गो टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज अ फ्रेशर, अगर आपकी विजिबिलिटी आपको क्रिएट करनी तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, राइट? हार्ड स्किल्स आपके पास जैसे इंजीनियरिंग है, मशीन ऑपरेटिंग है, ये सारी चीजें। सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो दीज आर द थिंग्स। और आपकी विजिबिलिटी तभी क्रिएट होगी जब आपका लिंक्डइन पे अकाउंट होगा। आपकी विजिबिलिटी तभी क्रिएट होगी जब आपने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया होगा कॉलेज में, आपको कुछ सर्टिफिकेट्स मिले होंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशन किए होंगे। सो प्रमोशन इज एवरीवेयर। बगैर प्रमोशन के ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकती। ये बात याद रखिए कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट आपको कभी नहीं देखने को मिलता, बट इसका मतलब ये नहीं कि दे आर नॉट एंगेजिंग द कस्टमर्स इन एनी प्रमोशनल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल लैम्बोर्गिनी, पोर्श, इनकी गाड़ियों का ऐड कभी भी आपने लैम्बोर्गिनी का, पोर्श का ना तो न्यूज़पेपर में देखा होगा ना वेबसाइट्स में देखा होगा, बट स्टिल ये नंबर 1 ब्रांड्स हैं लग्जरी कार मेकर कंपनीज। मैसेराटी, एस्टन मार्टिन, कभी भी इनका ऐड नहीं आता, बट इनके प्रोडक्ट्स, इनकी व्हीकल्स ऑटोमेटिकली बिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली उनको ही टारगेट करते हैं जो रिच होते हैं, जिनका प्रोफाइल इनको पता होता है कि ये एक इंडस्ट्री का मालिक है, चलो इसको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। सो वो वहां पर डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। सो प्रमोशन हर जगह पे है। इंश्योरेंस वाले भी प्रमोशन करते हैं, राइट? आपको बैंक्स की तरफ से भी प्रमोशन होता है। बैंक आपको टाइम टू टाइम ऑफर्स, उनके यहाँ पे इंसेंटिव स्कीम्स, ये सब बताता रहता है। लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं। बैंक्स के पास में अभी प्रिविलेज कार्ड सिस्टम है जो काफी टाइम से चालू हुआ है। अगर आप कहीं पर किसी एयरपोर्ट में जाते हैं, इंडिया में जो 12 मेजर एयरपोर्ट्स हैं, इन 12 मेजर एयरपोर्ट्स में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई,
उसके बाद आपके जो नेशनलाइज बैंक हैं, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह, इनके जो प्रिविलेज या प्लैटिनम कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स पे आपको लॉन्च एक्सेस मिलता है केवल 1 रुपए पे। आप 1 रुपए में जाके वहां पर बैठ के आराम से अपनी मन मुताबिक जितना टाइम आपको रुकना है, जब तक आपकी फ्लाइट नहीं आ रही तब तक आप वहां बैठ के बूफे सिस्टम एंजॉय कर सकते हैं फॉर 1 रुपीज ओनली। आप कभी बैंगलोर एयरपोर्ट जाइए, आपके पास में प्रिविलेज कार्ड है, 1 रुपए में आप वहां पर मनपसंद बूफे खा एंजॉयमेंट कर सकते हैं, अंदर आराम से एसी के केबिन में बैठ के। ये क्या है? ये प्रमोशन है कंपनी का। वो कंपनी आपसे कार्ड में 1 रुपए बस खाली स्वैप करवाती है, बट उसको पता है कि ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है। कई कंपनीज क्या करती है, जेट माइल्स देती है। माइल्स कार्ड क्या होता है? ये एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें कि आप जब शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने के बेसिस पे आपको कुछ पॉइंट्स जनरेट होते हैं। ये पॉइंट्स को आप इनकैश कर सकते हैं जब आप एयर ट्रेवल कर रहे हैं। तो जितना आपके पास में पॉइंट्स क्रेडिटेड है, उतना आप एयर ट्रेवल में उसको एक्सचेंज कर सकते हैं और उतना आपकी टिकट जो है वो कम पैसे में बुक हो सकती हैं। तो ये क्या है? एक तरीके का प्रमोशन है। कुछ कंपनीज बाई वन गेट वन फ्री, बाई वन गेट 50% ऑफ, ये सब प्रमोशनल स्कीम लेके आती हैं। कुछ कंपनी क्या करती है, अब एज अ पार्ट ऑफ प्रमोशनल स्कीम दे गिव यू सम पर्टिकुलर डिस्काउंट्स फॉर द पर्टिकुलर सीजन, राइट? तो ये भी एक तरीके का प्रमोशन है। प्रमोशन करने के लिए कुछ कंपनी एडवर्टीजमेंट करती हैं, राइट? अभी एडवर्टीजमेंट की बात की जाए तो आज और कल 26 और 27 तारीख को अमेजन की सबसे बड़ी सेल है, जिसमें कि अमेजन जितने स्मॉल ब्रांड्स हैं, छोटे स्टार्टअप्स हैं, उनको प्रमोट कर रहा है। और उसके लिए उसने एक स्पेशल टैगलाइन भी देके रखी है, अमेजन सहेली। जितनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स जो अमेजन ने लॉन्च किए हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसने उसमें नाम दिया अमेजन सहेली। उसके बाद उसने दिया है नाम अपना अमेजन लॉन्च पैड। अमेजन लॉन्च पैड का मतलब क्या है? जितने छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, आज और कल उनका प्रोडक्ट अमेजन एक्सक्लूसिवली अपने प्लेटफॉर्म पे बेचने वाला है। सो इसके थ्रू क्या होगा? अमेजन का बिजनेस भी होगा, प्लस वो जो छोटे बिजनेस वाले, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, they will get that particular opportunity to sell their brands, their products to the customers across the world, राइट? तो ये क्या है? ये एक तरीके का प्रमोशन है। आज आप एक तरीके से कस्टमर से कनेक्ट हो जाते हो और कल यही कस्टमर आपके लिए पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करता है, जिसको बोला जाता है कस्टमर एडवोकेसी। तो ये सब चीजें प्रमोशन का ही पार्ट है। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। आज के पेपर में फुल पेज Yes, ऐड sir. आया है अमेजन का। आपको अगर देखना है, आप आज के न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में देख सकते हैं। अभी एक फुल पेज एडवर्टीजमेंट है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है अमेजन लॉन्च पैड, अमेजन सहेली, अमेजन ये, अमेजन वो। क्यों दिया हुआ है उन्होंने इतना फुल पेज ऐड? जस्ट बिकॉज दे वांट टू ग्रैब द कस्टमर्स अटेंशन, राइट? ग्रेट डील्स, न्यू लॉन्चेस, ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें डिस्कवर नाउ करके उन्होंने फुल पेज एडवर्टीजमेंट दिया है। और उसके नीचे एचडीएफसी बैंक के साथ में टाई अप किया इन्होंने कि 10% इंस्टेंट डिस्काउंट विद द एचडीएफसी बैंक डेबिट कार्ड्स और द क्रेडिट कार्ड्स एंड द ईएमआई। और उसके बाजू में उन्होंने लिखा है पावर्ड बाय अमेजन पे। तो ये क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ प्रमोशन, राइट? ब्रांड्स अपना प्रमोट करने के लिए कई बार कोलैबोरेट करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप मार्केट में कभी च्यवनप्राश खरीदने जाओ, पतंजलि का च्यवनप्राश जब आप खरीदोगे तो उसके साथ में आपको पतंजलि का हनी फ्री मिलेगा। सो व्हाई दिस इज बीन गिवन? दिस इज गिवन एज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन। कई बार कुछ ऑनलाइन एजुकेशनल वेबसाइट्स या ऑनलाइन कंपनीज जो ये ट्रेनिंग या ट्यूशन प्रोवाइड करती हैं या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, बायजूस है फॉर एग्जांपल, तो वो आपको स्टार्टिंग में 1 या 2 डेमो लेक्चर्स वो फ्री देता है। क्यों देता है? सो दैट आपको पता चले कि हाँ ये कैसा है, और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं, राइट? आप ऐसा कई सारे एप्स के केस में भी देख सकते हैं। वन पर्टिकुलर वेब सीरीज का एक एपिसोड फ्री कर देते हैं और दूसरा एपिसोड देखने के लिए आपको बोलते हैं लॉग इन करिए अपने अकाउंट से, और उसके बाद लॉग इन जब करते हैं तो वो आपको प्लान्स दिखाते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रमोशन। कई बार कुछ सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, वो आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल देते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ प्रमोशन। सो प्रमोशन हर जगह पे है। Without promotion, the brands cannot survive. Even Microsoft like companies, Apple like companies, the Google like companies are engaging in promotions using the doodles, right? Google doodle आते रहते हैं। अगर आज ही का doodle देखेंगे, आपको पता है आज का क्या doodle है? Have you seen that doodle of Google today? No, sir. क्या है उसमें?
क्या है आज का टोटल? एनीवन? एक वीडियो है, जरूर देखिएगा, जापानीज। आपको बताना है उसका कैरेक्टर का नाम। दिस इज द मैस्कॉट फॉर योर ओलंपिक गेम्स। मैंने अपने पिछले सेशन में बताया था कि मैस्कॉट्स क्यों यूज किए जाते हैं। प्रमोशन, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ओलंपिक का ये मैस्कॉट जो है, इसके पीछे भी एक सिग्निफिकेंस है। तो ये सब आपको पढ़ना है, राइट। अभी कुछ ब्रांड्स क्या करते हैं, रीजनल लैंग्वेज में अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट अलग अलग लैंग्वेज में देते हैं। फॉर एग्जांपल कोलगेट, अगर आप यहाँ पर महाराष्ट्र में कोलगेट का एडवर्टीजमेंट देखोगे रीजनल चैनल पे, इट विल कम ऑन इन मराठी लैंग्वेज, ठीक है। आप नॉर्थ में जाओगे वो हिंदी में दिखेगा। उसके बाद आप बंगाल में जाओगे तो वही एडवर्टीजमेंट बंगाली में डब किया हुआ दिखेगा। पंजाब में जाओगे वही एडवर्टीजमेंट आपको पंजाबी में दिखेगा। गुजरात में जाओगे, उड़ीसा में जाओगे, तमिलनाडु में जाओगे, हर जगह के हिसाब से आपको वो एडवर्टीजमेंट दिखेगा। क्यों ऐसा करती हैं कंपनीज? बिकॉज उनको पता है कि कस्टमर को उसी के लैंग्वेज में अगर हमने वो चीजें प्रमोट की तो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। समझ में आया आप लोगों को प्रमोशन का एग्जांपल? Yes. ओके। Yes. अब आप लोगों ने Yes, कुछ sir. देखा होगा, सॉलिटेयर पता है आप लोगों को? व्हाट इज सॉलिटेयर? एनीवन फ्रॉम द क्लास? एनीवन फ्रॉम द क्लास? व्हाट इज सॉलिटेयर? सर ये कुछ तो यूटेंसिल्स में का ये है, ये शायद कंपनी जी, मतलब सर वो कार्ड का गेम है ना, वो कार्ड का कंप्यूटर गेम भी में। होता है, कार्ड का गेम भी होता है, एग्जैक्ट। बट ये सॉलिटेयर यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो होता है सिंगल कट डायमंड। ये जो डायमंड ज्वेलरी वाली कंपनीज हैं, चाहे वो डीडी मास हो या फॉरएवर हो या उसके बाद आपका तनिष्क हो, आप कभी भी जाके वहां पर उसको बोलिएगा कि मुझे सॉलिटेयर डायमंड दिखाइए। सॉलिटेयर डायमंड मतलब एक सिंगल बड़ा डायमंड, उसका प्राइस ज्यादा होता है। तो जब भी कभी आप आगे चल के अपने पार्टनर को जब गिफ्ट करेंगे तो ये दिमाग में रखिए कि सॉलिटेयर। तो इसका जो प्रमोशन होता है ना सॉलिटेयर डायमंड्स का, वो एक अलग सी जगह पे उसको बिल्कुल ब्लू कलर का केस होता है। आप तनिष्क में जाइए या पूना गाडगिल में जाइए, वो आपको अंदर बैठाएंगे प्रॉपर। आपके लिए बाहर चाय मिलेगी बट अंदर आपको फ्रूट जूस मिलेगा। आपको, आप कभी जाके ट्राई करके देखिए, आप देखोगे आपको वो अलग तरीके से दिखाएगा कि ये देखिए डायमंड्स हैं, ये इतने क्रेट का है, ये इतने क्रेट का है। सो ये क्या है, ये एक तरीके का वहां पर वो लाइट्स भी जो लगाते हैं ना, वो लाइट वाइट कलर की हेलोजन लाइट्स लगाते हैं, जिससे कि वो जो उस पर रिफ्लेक्शन होगा वो और ज्यादा अच्छा होगा। जब बाहर आप देखेंगे तो येलो कलर की लाइट्स लगाते हैं, बिकॉज गोल्ड के ऊपर जब येलो कलर का लाइट पड़ती है तो वो और ज्यादा ग्लिटर करता है। तो ये सारी चीजें प्रमोशन है, राइट। समझ में आया? आपने देखा होगा कई बार विजुअल मर्चेंडाइजिंग की जाती है स्टोर्स में। आप स्टोर के बाहर देखते हैं वो मैनीक्वींस लगे होते हैं, उसमें लेटेस्ट अराइवल या कुछ ना कुछ आपने देखा होगा, कुछ डेकोरेशन कुछ अलग सा होता है, रस्टी लुक दिया जाता है या उसको एथनिक लुक दिया जाता है या वेस्टर्न लुक दिया जाता है। तो दीज आर ऑल प्रमोशंस, राइट। उसके बाजू में आपको उसमें एक टैग लटका हो रहता है 50% ऑफ, बाय टू गेट वन फ्री। ये सब क्या है? दीज आर द प्रमोशंस। एक पिंपरी में पिछले कुछ दिन पहले वहां पर एक ऑफर चल रहा था कि आप आपके मोबाइल कैमरे से फोटो खींचिए और खींचने के बाद सेल्फी लेने के बाद ओप्पो के फोन की सेल्फी से कंपेयर करिए। अगर आपके फोन की सेल्फी ओप्पो के फोन की सेल्फी से अगर अच्छी निकली तो वो ओप्पो का Z सीरीज का जो फोन था वो आपको फ्री में दे रहे थे सिलेक्टेड कस्टमर्स को। और ऐसा उन्होंने किया भी एक कस्टमर को। जब वो क्यों किया? क्योंकि उनको भी चाहिए कि एक बार 1000-2000 कस्टमर आ गए, उसमें से एक को दे दिया तो अगले दिन जब वो लगाएंगे तो अगले दिन और ज्यादा भीड़ हो। तो इसकी वजह से इनका क्या हुआ, डायरेक्ट प्रमोशन हो गया। डायरेक्ट प्रमोशन हो गया, लोगों ने कहा कि अरे यार वहां पर फोन मिल सकता है, चलो कुछ ना कुछ इवेंट करके वहां पर वो कुछ एक्टिविटीज देते हैं और उसको आपको परफॉर्म करना है। आप कभी भी जाइए फिनिक्स मॉल में, हर सैटरडे को वहां पर एक म्यूजिकल कंसर्ट होता है। जो ईस्ट साइड है वहां पर आपको ईस्ट कोर्ट में म्यूजिकल कंसर्ट होता है। वहां पर जाएंगे आप आराम से, जितने लेटेस्ट सिंगर्स हैं, लेटेस्ट म्यूजिक बैंड्स हैं, उसकी म्यूजिक का आप मजा ले सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि फिनिक्स मॉल में जब आप जा रहे हैं तो ये तो हो गया म्यूजिकल बैंड्स का प्रमोशन। एट द सेम टाइम वो जो कुछ कंपनीज होती हैं, चाहे वो परफ्यूम की कंपनी हो, कॉस्मेटिक ब्रांड की कंपनी हो, वो वहां पर बेसमेंट में, जो इनका बेसमेंट है फिनिक्स मार्केट सिटी का या सिनेपोलिस मॉल का या एमेनोरा पार्क टाउन का, यहाँ पर आप देखेंगे
कि इनकी कुछ ना कुछ इवेंट्स चलते रहते हैं सैटरडे को, या तो ये डांस करते हैं या कुछ कस्टमर्स को बुलाते हैं, उनको कुछ एक्टिविटीज देते हैं, कुछ टास्क देते हैं, पुशअप करना है, कुछ गाना गा के सुनाना है, या कुछ पजल्स देते हैं, और उसके बदले में उनको डिस्काउंट कूपन्स, ऑफर्स, या उनको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स देते हैं। तो ये भी एक तरीका है प्रमोशन का। आज कस्टमर्स को इंगेज करना अगर आपको आ गया तो प्रमोशन करना आपको आ गया। प्रमोशन का मतलब ये नहीं कि केवल एड दिखाना, एड देख के कोई भी कस्टमर जल्दी जल्दी नहीं आएगा, तो आपको प्रमोट करने के लिए अलग अलग तरीके निकालने पड़ते हैं। किस तरीके से किसी एक प्रोडक्ट के साथ में जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है अपने प्रोडक्ट को बेच दो, आपका प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाएगी, प्लस आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे कई सारी कंपनीज करती हैं। आप देखेंगे कि मार्केट में अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स विच आर नॉट कॉम्पिटिंग, वो आपस में एक साथ सेल किए जाते हैं। क्यों सेल किए जाते हैं? कंपनी को पता है कि इससे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, बट अगर मैंने इस प्रोडक्ट के साथ में अगर मैंने अपना प्रोडक्ट लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट्री कस्टमर्स को मिलेगा, बट इसका प्राइस इसके प्रोडक्ट के प्राइस में जुड़ा हुआ है, तो उसको भी बिजनेस मिल जाएगा, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट भी प्रमोट हो जाएगा। आप लोग देखेंगे मार्केट में भरे पड़े हैं ऐसे एग्जांपल्स। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यस सर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। प्रमोशन को आज जो ये अपना 4th P ऑफ मार्केटिंग मिक्स है, इसको बोला जाता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। पहले इसको प्रमोशन बोलते थे। इन अर्लियर डेज द मार्केटर्स यूज्ड टू कॉल दिस पर्टिकुलर term just as a 4th P, that is the promotion. But today we call it as a marketing communication, because it is not just responsible and it is not just associated with promoting the brands, but it is also related to communicating about the product, service, idea, information, the feedback, the other information related to the brand to the customers, and from the customer it is communicating the information to the manufacturer. That is why today we call the promotion as the marketing communication. So marketing communication is basically a fundamental and a complex part of a company's marketing efforts. Marketing communication functions within a market framework, traditionally known as the promotional element of the 4th P of the marketing mix. That is the product, place, price, and promotion. The marketing communication is basically an approach used by the organizations to brand and coordinate their marketing efforts across the कम्युनिकेशन चैनल्स। आपके प्रोडक्ट का ऐड कोई कस्टमर ऑनलाइन देख रहा है, कोई कस्टमर वही सेम प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे पढ़ रहा है, कोई कस्टमर वही प्रोडक्ट का एक बैनर रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त देख रहा है, साइड में एक बैनर लगा हुआ है, कोई कस्टमर जब इन स्टोर जा रहा है तो इन स्टोर प्रमोशंस होते हैं। इन स्टोर प्रमोशन में आपने पोस्टर, बैनर, डैंगलर, कटआउट ये सब देखे होंगे, नियॉन साइन बोर्ड्स देखे होंगे, वहां पर भी कस्टमर पढ़ रहा है। सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या करता है? अक्रॉस ऑल द चैनल इट स्ट्रीमलाइंस द पर्टिकुलर मैसेज which the company wants to communicate it to the customers. Is it clear to all? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let us understand the role of marketing communication in marketing efforts. जो भी हम मार्केटिंग करते हैं उसमें कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या वेराइटी है, क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या क्या वेराइटीज हैं। जब आप कम्युनिकेट करोगे तभी लोगों को पता चलेगा कि अच्छा इनके पास ये भी है, इनके पास ये भी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल बॉश, जैसे ही मैंने आपको बॉश का नाम दिया, बॉश कंपनी क्या है, आपको पता चलेगा कि ये एक कंपनी है जिसके इंजन्स मार्केट में आते हैं, जिसकी वॉशिंग मशीन मार्केट में आती है बॉश की, या बॉश कंपनी का वैक्यूम क्लीनर्स आते हैं मार्केट में। अब बॉश इसके अलावा किसी और चीज में है क्या? तो जो कुछ ही लोगों को पता होगा कि बॉश जो है वो स्पीकर्स भी बनाता है, राइट? उसके बाद बॉश कंपनी जो है, बॉश कुछ कंपनी के लिए कंपोनेंट पार्ट्स भी बनाता है। ये सारी चीजें कम ही लोगों को पता होगी। तो कंपनी जब तक जी ड्रिलिंग मशीन सर, यस, मशीन्स वगैरह। तो ये जो है, अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करेगी, कम्युनिकेट नहीं करेगी, तो लोगों को पता नहीं चलेगा। जब लोगों को पता नहीं चलेगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, राइट? सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज अ वे बाय विच द फर्म्स attempt to inform, persuade, and remind the consumers about the products and services and the brands that they sell. With the help of the marketing communication, firms can establish a dialogue with the customers and build the relations. Marketing communication helps in educating the customers on how the product works, its features, and what brands stands for. It also helps to make the customers aware about the products and the brands. ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए? एजुकेट करना, अवेयरनेस करना,
कम्युनिकेट करना, परसुएट करना, इन्फॉर्म करना, यही मार्केटिंग कम्युनिकेशन का फंक्शन है. इज दैट क्लियर टू ऑल माय फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो मार्केटिंग कम्युनिकेशन परसुएट कैसे करता है? लोगों को जब नया प्रोडक्ट है तो कैसे इंड्यूस करेगा? ट्रायल करने के लिए. आपने देखा होगा नई गाड़ी जब आती है शोरूम पे किसी भी ब्रांड की, जैसे किया, ठीक है, आपको पता है किया मोटर्स के बारे में पता है? इट्स अ सब्सिडियरी ऑफ Hyundai. मालूम है Yes, आप sir. लोगों को? Yes. Hyundai की सब्सिडियरी है. Yes. किया की वो कौन सी पहली गाड़ी है जो मार्केट में आई, जो बहुत सक्सेसफुल हुई? Seltos, sir. यस एग्जैक्टली, सेल्टॉस. अभी मारुति की कोई भी नई गाड़ी आ रही है, Hyundai की कोई भी नई गाड़ी आ रही है, मर्सिडीज की आ रही है, दे हैव द डेमो कार्स. ये डेमो कार्स का फंक्शन क्या होता है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन. लोगों को ऐड देख के उतना समझ में नहीं आएगा. द पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द व्हीकल जस्ट बाय लुकिंग एट द एडवर्टाइजमेंट, एंड दैट इज व्हाई द कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दे प्रोवाइड द डीलर्स with the demo cars. In the demo car, the customer can take the test ride and can decide whether the car is good for him for riding or not. The customer will get a feel, the customer will experience the ride, and the customers will get the joy of that particular ride, even though the customer has not purchased the vehicle. This joy, this experience will help the company to get the customer satisfaction and will help the company to get the sales. This is why marketing communication is very important. You induce the customers to go for the trial in the malls. What you do, अगर आपको एक सूट खरीदना है अपने लिए, तो आप क्या करते हैं? आप जाते हैं, आप किसी भी ब्रांड में चले गए, लुई फिलिप में चले गए, राइट, वैन हुसैन में चले गए, ग्रेडो में चले गए, आपने देखा लाइन से रेंज लगी हुई है, आपने उठाया, गए वहां पर ट्रायल रूम में, ट्राई करके देखा. ये क्या है? ये भी एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन है. कंपनी चाहती है कि आप देखें. आप, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, मिंत्रा कंपनी का एक ब्रांड है जिसको बोलते हैं रोडस्टर. ये रोडस्टर ब्रांड जो है, ये स्टोर में ये इनके इनके पर्टिकुलर अपैरल्स और एक्सेसरीज बिकते हैं. फिनिक्स मार्केट सिटी में रोडस्टर ब्रांड है. आप वहां पर जाएंगे, आपको क्या करना है? आप किसी भी शेल्फ से कोई जीन्स उठा लीजिए या कोई जैकेट उठा लीजिए. उठाने के बाद वहां पर वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं. उस वेंडिंग मशीन की ट्रे में जैसे ही आपने उस प्रोडक्ट को रखा, आपको पता चल जाएगा कि उस दिन उस पर्टिकुलर स्टोर में उस पर्टिकुलर वेराइटी में, फॉर एग्जांपल वेस्ट साइज 34, इसमें आपको जीन्स खरीदनी है, तो 34 वेस्ट साइज में आपको इसमें कौन कौन से कलर मिल जाएंगे, क्या क्या प्राइस है उसका, और क्या ऑफर चल रहा है. अगर आपको पसंद आता है, इमीडिएटली आप वो वहां पर जाके स्टोर से वो दूसरा कलर ले सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि इतना फिजिकल स्टॉक है, इस कलर का इतना है. वहां से जाके उठाया, उस जीन्स को वापस लाके उधर डाला उसी ट्रे के ऊपर, और आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वहां पर मशीन लगी हुई उसमें डाला, और डालने के बाद अपना पिन कोड डालते ही आपका पेमेंट हो गया. आपको पेमेंट के लिए काउंटर में खड़े होने की जरूरत नहीं. ये भी एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन है. कंपनीज इसको यूज कर रही हैं, राइट, एक्सटेंसिवली. लोग क्यों वेट नहीं करना चाहते? क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी है, उन्होंने कस्टमर्स को इम्पेशेंट बना दिया है. इम्पेशेंट मतलब ये, आज कोई भी आप गाड़ी की सर्विसिंग के लिए भी गाड़ी को देते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार गाड़ी एक ही दिन में मिल जाए. अगर कार है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि गाड़ी 2 दिन 3 दिन में मिले. पहले के टाइम पे जब कार सर्विसिंग के लिए दी जाती थी तो मिनिमम 3 to 4 days लगते थे. बट आज की तारीख में एफिशिएंसी इतनी फास्ट है कि आपने अभी गाड़ी दी और आपको 2 घंटे के अंदर गाड़ी मिल जाती है, राइट. तो कंपनीज अपने एफिशिएंसी को बढ़ा के उसको भी एक कम्युनिकेशन के टूल में यूज करती हैं. It also helps in brand image building. It also helps in the particular brand positioning. लोग ब्रांड से कनेक्ट तभी होते हैं जब ब्रांड के अंदर कुछ यूएसपी होती है. लोग कनेक्ट तभी होते हैं जब उनको लगता है कि हाँ, हमारा ब्रांड जो है वो काफी प्रीमियम ब्रांड है, एक दूसरे ब्रांड से अलग हटके है. गुच्ची का लोग टैटू करवाते हैं, हार्ले डेविडसन का टैटू कराते हैं, डुकाटी का टैटू कराते हैं. क्यों नाम टैटू कराते हैं? क्योंकि लोग कनेक्टेड होते हैं. वो क्यों कनेक्टेड होते हैं? क्योंकि उनको जो चाहिए वो उनको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी ब्रांड्स हैं उससे वो मिल नहीं रहा. और कस्टमर डिलाइट तभी हो सकता है जब मार्केटिंग कम्युनिकेशन आपका अप्रोप्रिएट हो. आपने देखा होगा हर साल टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग पे जब एप्पल अपना नया फोन लॉन्च करता है, उस टाइम 50 से 60 हजार लोग लाइन में खड़े रहते हैं, 2 दिन 3 दिन, अपना बर्गर खाना, बैग, सब कुछ लेके खड़े रहते हैं अमेरिका जैसी जगह में, उस जगह पे पहला ग्लिम्स लेने के लिए, जस्ट टू गेट द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द पर्टिकुलर आईफोन ब्रांड. 50 to 60,000 people they gather every year in the Times Square building. कम्युनिकेशन है. अपने प्रोडक्ट को इतना ज्यादा
उसको हाईलाइट करा दो, ऐसा एडवर्टीजमेंट, ऐसा प्रोपोगेंडा क्रिएट करो कि कस्टमर उसके लिए डाई हार्ड फैन हो जाए। टुमारोज लैंड आपको पता होगा, एनीवन नोज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टुमारोज लैंड? पता है आप लोगों को व्हाट इज टुमारोज लैंड, सागर? नो सर। ओके, टुमारोलैंड बेसिकली क्या है, ये कंसेप्ट है जो वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है। इबिजा में लास्ट टाइम हुआ था ये, इबिजा एक स्विट्जरलैंड में जगह है, यहाँ पर टुमारोज लैंड इट्स अ काइंड ऑफ म्यूजिकल कंसर्ट, जहाँ पर आपको वर्ल्ड के बड़े बड़े म्यूजिक बैंड्स के साथ साथ जो परफॉर्मर्स हैं, रॉक स्टार्स या पॉप स्टार्स, ये एक ही जगह पे आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। एक बड़ा सा एरिया लेते हैं ये लोग, जहाँ पर बहुत सारे स्विमिंग पूल्स होते हैं, खाने पीने का सब कुछ रहता है, सारी चीजें हैं। और वहां पर ये आपके एक जगह पर आप देखेंगे शकीरा परफॉर्म कर रही है, एक जगह पे डेविड गुइटा परफॉर्म कर रहा है, एक जगह पे ईडी श्रीन परफॉर्म कर रहा है, एक जगह पे एमिनेम का बैंड है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का एक्सपीरियंस देने के लिए टुमारोज लैंड है। यहाँ पर एक दिन का एक दिन का प्राइस जो है, जो कस्टमर पे करते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 7 मिलियन यूएस डॉलर्स। 7 मिलियन यूएस डॉलर पे करने के बाद आपको टुमारोज लैंड की एंट्री मिलती है। कस्टमर को लेने के लिए चार्टर्ड प्लेन आता है एयरपोर्ट पे, और वो चार्टर्ड प्लेन उसको लेके जाता है। आप सोचिए कि ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ पर आपको आपके फेवरेट सिंगर्स, सारी सब कुछ चीजें आपको वहां पर आपके सामने होंगी। तो ये क्या है, ये एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। अभी कोविड की वजह से ये रुक गया, वरना ये टुमारोज लैंड जो है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत फेमस है। आप इसके बारे में नेट पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी सर्च ये कर मतलब ये फेस्टिवल होगा ना यस सर, सर? यस सर। दिन का सर? देखो, सकते हैं। जैसे देखिए, स्पेन में अभी एक ला सर्च किया था टमेटिनो करके फेस्टिवल होता है, ला हाँ टमेटिनो, सर, सुना लामाटिनो, आपने? हाँ। ला यस यस सर। सर, टमेटिनो मालूम। में क्या होता है, दो चीजें हैं, एक तो टमाटो का फेस्टिवल होता है, लोग टमाटो मारते हैं, और दूसरा वहां पर होता है बुल। वो बुल को छोड़ दिया जाता है स्ट्रीट्स में, और आपने मूवी देखी होगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और यस वो सर। बुल जो है भागता है, लोग भी उसके आगे आगे भागते हैं। तो ये वो वहाँ का फेस्टिवल है जिसको उन्होंने पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कम्युनिकेट कर दिया, पूरी दुनिया से लोग जाके वो देखने जाते हैं। उसी तरीके से ये टुमारोज लैंड जो है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक नया कंसेप्ट निकाला है, एक तरीके का अम्यूजमेंट, एंटरटेनमेंट, सारी चीजें आपको एक ही जगह पर। आपकी फेमस राइड्स, जो आपको फेवरेट राइड चाहिए वो राइड भी मिल रही है आपको, आपका फेवरेट खाना भी मिल रहा है वर्ल्ड के बेस्ट शेफ से, जो आपको सर्व कर रहे हैं खाना। एट द सेम टाइम आपका वर्ल्ड के बेस्ट जो पॉप स्टार हैं, वो आपके सामने लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो 7 मिलियन यूएस डॉलर से इसकी स्टार्ट होती है टिकट की। जितना प्रीमियम प्राइस पे करोगे उतना आपके लिए और फैसिलिटीज हैं, लग्जरी सूट्स भी हैं वहां पर। राइट, समझ में आया? तो ये जो होता है 7 to 15 डेज का इवेंट होता है, कई कई बार एक एक महीने तक चलता है, डिपेंड करता है कि कितना क्राउड है। और ज़्यादा लोगों को लेते भी नहीं है लोग, ज़्यादा लेंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी, तो इनको ज़्यादा भीड़ भी नहीं चाहिए। ये कम्युनिकेशन है इनका, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अपने आप पहुंच जाता है कि अभी ये टुमारोज लैंड यहाँ पर आ रहा है। उसी को कॉपी करके गोवा में और अभी पुणे में आपने देखा होगा, सनबर्न करके एक फेस्टिवल होता है, सुना है आप लोगों ने सनबर्न? यस सर, 2 साल पहले उसका एडवर्टाइज था। यस सर। यस, सनबर्न का एडवर्टीजमेंट आता था, अभी नहीं आ रहा क्योंकि कोविड चल रहा है। तो ये सनबर्न क्या होता है, सनबर्न वहीं से कॉपी किया गया है, बट सनबर्न में लोकल परफॉर्मेंस रहते हैं, लोकल बैंड रहते हैं। जैसे पुणे का अग्नि बैंड, मैं काफी सुनता हूँ उसको। तो ये अग्नि बैंड अभी कुछ साल पहले जब इसने स्टार्ट किया था अपना लाइव परफॉर्मेंस, तो फर्स्ट परफॉर्मेंस मैंने इसका देखा था घोरपुरी में। सो ये सारी चीज़ें जो है, आपको अगर इसमें आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन किस तरीके से अभी नए नए तरीकों से पहुंच गया। अभी कस्टमर के पास में मोबाइल फ़ोन है, स्टोर के अंदर घुसा, वो उसका फ़ोन कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ के थ्रू या वाईफाई के थ्रू स्टोर के अंदर। जब स्टोर के नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो कंपनी का स्टोर इमीडिएट अपनी वेबसाइट ओपन करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करेगा। आपके स्टोर में जो भी प्रमोशन चल रहा है वो आप आपके मोबाइल फ़ोन में देख सकते हो बगैर किसी से पूछे। इट इज़ अ काइंड ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये RFD टैग्स यूज़ होते हैं, बेकॉन्स यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी आजकल मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जा रही हैं। तो टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ हो रहा है। राइट, समझ में आया आप लोगों को? इससे क्या हो रहा है, कंपनी का ब्रांड इमेज भी स्ट्रांग हो रहा है एंड सेल्स भी स्ट्रांग हो रही है। कस्टमर को एक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी मिलती है। जैसे आप डिज्नीलैंड में जाते हैं, अगर डिज्नीलैंड आपको पता है कहाँ पर है, वेयर इज डिज्नीलैंड? अमेरिका। यस, सो डिज्नीलैंड में अगर आप जाते हैं, वॉल्ट डिज्नी ने इसको स्टार्ट किया था, तो वहां पर आप देखेंगे कि वो एक आपको कस्टमर को एक बैंड पहनाते हैं। ये एक बैंड जो होता है, ये एक तरीके का रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग होता है।
जैसे ही कस्टमर वहां पर अंदर शॉपिंग करने के लिए नजदीक के किसी भी स्टोर में पहुंचता है, पहुंचने वाला होता है विद इन 100 मीटर्स, वो जैसे ही पहुंचता है वहां के स्टोर के अंदर जो बैठा हुआ है मैनेजर, उसको उसके सिस्टम पे ब्लिंक करता हुआ दिख जाएगा कि ये कस्टमर का नाम ये है, इसकी ये है, इसका डेट ऑफ बर्थ ये है। और उसके बाद वो जैसे ही कस्टमर वहां पर जाएगा तो उस कस्टमर को उसके नाम से वो ग्रीट करते हैं। उसके बाद अगर उस दिन उसका मैरिज एनिवर्सरी है, उसका बर्थडे है, तो उसको वो सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। आई होप एग्जांपल्स आर क्लियर टू ऑल। Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So I would like to conclude my session here now because I have my another session immediately. Thank you, sir.